Hello friends, once again welcome to my YouTube channel. I am Professor Radharaman Singh and I am teaching you the mathematics, which is actually applied mathematics. Uh, the topic which we are covering is called Laplace transformations. And this topic Laplace transformation is very important topic for the engineering mathematics, and lots of problems are solved with the help of Laplace transformation. Even the problem of differential equation is solved with the help of Laplace transformations. So this is the very important topics for the diploma students as well as the engineering students and the students which are studying in BSc and MSc. So I hope if you read this topic, then it will help you a lot. In the last 2 or 3 topics, we have discussed what is the definition of Laplace transformations, what is the sufficient conditions for a functions to perform a Laplace transformations, and we have also discussed the Laplace transformation of some elementary functions, just like exponential functions, trigonometrical functions, hyperbolic functions, algebraic functions, etc. etc. And then we transform lots of functions which are composition of elementary functions as Laplace. And lots of problems do not solve, do not transform in Laplace without doing the property of Laplace transformation. So hello guys, you must have to know the basic properties of the Laplace transformations. So I think 7 and 8 properties we have to read, and we are going to start to read the properties of Laplace transformations. And first of all, we are going to read the first Laplace transformations. You can see on the board. The first Laplace transformation, the property of Laplace transformation, the first one, that is P1, is what? First shifting property. नाम से ही क्लियर है, हमको पढ़ना है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी. क्या है कि फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी? तो कहता है कि इफ Laplace transformation of ft, उसको हम लोग fs मानते हैं, हमेशा fs लिखते हैं. देन अगर हम ft को e टू दी पावर माइनस at से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, सॉरी e टू दी पावर at से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा fs माइनस a हो जाएगा. ठीक है, ये जो आपको प्रॉपर्टी है, इसी को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी. इसका हमने प्रूफ भी कर रखा है, जहां a के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है कि a मेरा कोई रियल कांस्टेंट है. क्लियर? चलिए अब देख सकते हो यहाँ पे गिवन है Laplace transformation of ft is equal to fs. We have, ये दिया हुआ है, we have Laplace transformation of ft is equal to, this is a formula, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन होता है, 0 to infinity e to the power minus st ft dt. अगर हम ft के प्लेस में ft के जगह पे e to the power at into ft लिखे तो ये पूरा का पूरा ft ट्रीट होगा. तो इसके बदले में यहाँ पे देखो पूरा का पूरा आएगा, इसको एक साथ लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस ऑफ s माइनस, और यहाँ पे आपका t छूट गया है, सिंपली t यहाँ. ठीक है, अब t के साथ यहाँ पे s था, ठीक है, तो fs लिखा है, बट यहाँ t के साथ क्या s माइनस a है, तो इसलिए यहाँ पे fs माइनस a लिखा है, और यही आपका क्या है, कंप्लीट प्रूफ है. तो एज ए रिजल्ट इसको आप याद रखिए, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ Laplace ट्रांसफॉर्मेशंस. क्लियर? चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं. ठीक है, एक चीज और बता देते हैं, अगर यहाँ माइनस ए हो जाएगा तो यहाँ s प्लस ए हो जाएगा. कोई नई बात नहीं है, यही प्रॉपर्टी है, उसके लिए कोई नया प्रॉपर्टी नहीं पढ़ना है. क्लियर? एक बार इसको देख लो, फिर हम इस पे क्वेश्चंस करते हैं.
हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज करके कुछ नोट्स तो लिख ही सकते थे। वो नोट्स आप देख रहे हो, अगर L1 है मतलब 1 का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो 1/s हो गया, लेकिन अगर हम इसको e टू दी पावर 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो s की जगह में s माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सी बात है कि यहाँ जो s है वो a से बड़ा है। उसी तरह से यहाँ भी देख लीजिए, e टू दी पावर n का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है फैक्टोरियल n अपॉन s टू दी पावर n प्लस 1। अगर इसको e टू दी पावर at इंटू t टू दी पावर n करेंगे तो इनका हो जाएगा n माइनस 1। इन प्लेस ऑफ s यू कैन राइट s माइनस a टू दी पावर n प्लस 1। कंडीशन सेम है, s के जगह में क्या होगा, a से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पर s जो है वो पॉजिटिव होता है, यहाँ पे s 0 से बड़ा होता है। ठीक है, चलिए फिर उसी तरह से बाकी सबका शिफ्टिंग प्रॉपर्टी किए हैं। तो इसका हमको पता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन b अपॉन s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। तो यहाँ जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बस जहाँ s है वहाँ पे s माइनस हो जाएगा प्लस b स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों में हमको पता है कंडीशन जो होता है s ग्रेटर देन b होता है, यहाँ भी होता है s ग्रेटर देन b। ठीक है, बाकी को आप पता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लिख सकते हैं सर, कोई जरूरी नहीं कि कंडीशन लिखो, छोड़ दीजिए, नॉन है क्लियर है, इतना आप याद रख सकते हैं। ठीक है, ये नोट वाला पार्ट है, ये कुछ नहीं है, ये था विदाउट शिफ्टिंग, ये था आफ्टर शिफ्टिंग। जब आप फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा देते हैं उसके बाद उस लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को आप फर्स्ट शिफ्टिंग के बाद इतना आप लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम एज ए नोट्स याद रख सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग इस पर क्या करते हैं, क्वेश्चंस बनाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आप देख रहे हो, ठीक है, इसको मैं शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से बनाऊंगा। तो पहले क्या करता हूँ, सॉल्यूशन लिखते हैं और लेट ft इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर टी लिखते हैं। कॉस स्क्वायर टी को पता लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2t/2। ठीक है, इतना लिख सकते हैं। तो देयरफॉर LFT इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 प्लस कॉस 2t और 1/2 कांस्टेंट, इसको बाहर कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2, 1 की जगह में 1/s और प्लस कॉस 2t का s अपॉन s स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर, मतलब सीधा सीधी 4 हो जाएगा और ये आपका इतना आ गया। और इसी को हम लोग बोलते हैं fs से। लेकिन मेरा क्वेश्चन क्या था, मेरा क्वेश्चन था ft इंटू e टू दी पावर t। तो देयरफॉर LFT e टू दी पावर माइनस t इंटू ft। ठीक है, इतना इज इक्वल टू, तो जहां जहां s है वहां पे कितना हो जाएगा, s प्लस 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा f s प्लस 1। इसका मतलब जहां जहां भी s वहां पे s प्लस 1 हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू हाफ तो रहेगा नहीं, और ये हो जाएगा 1/s प्लस 1 और प्लस s प्लस 1 अपॉन s प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4। आप चाहो तो इतना भी छोड़ सकते हो या फिर इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया है, थोड़ा सा एक स्टेप, इसको लिख सकते हैं हाफ ऑफ 1/s प्लस 1 प्लस s प्लस 1, इसको लिखा है s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5, s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5, और ये आपका आंसर है। तो आप क्या किए, यहाँ पे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हमने इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन किया है। ठीक है, तो पहले जो ft था cos स्क्वायर t, इसको मैंने ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन से इस तरह से चेंज कर दिया मल्टीपल में। उसके बाद इस दोनों का हमको लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पता है, फार्मूला लिख दिए, और अल्टीमेटली शिफ्टिंग का यूज करते हुए जहाँ s है वहाँ s प्लस 1 लिखना है, क्योंकि a की जगह में आपका -1 हो गया तो s प्लस 1 हो गया, और फिर जहाँ जहाँ भी s था वहाँ पे मैंने x प्लस 1 रख दिया, तो फाइनली आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। तो दिस इज द क्वेश्चंस बिलोंग्स टू द फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, एंड आप देख रहे हैं कि मैं कैसे इसको डील कर रहा हूँ, आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा।
क्लियर? चलिए अगला सवाल देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, उसी तरह का एक क्वेश्चन है, यहाँ आप देख सकते हैं। देखने से ही लग रहा है, क्या करेंगे? लेट एफ टी इज इक्वल टू 2 cos 5t माइनस 3 sin 5t, ये मैंने एफ टी माना। इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाल लीजिए। तो देयरफॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर हो गया। cos 5t का कितना हो जाएगा? s अपॉन s स्क्वायर और 5 है तो प्लस 25, फिर बीच में माइनस 3 इंटू साइन 5t है तो साइन a की जगह में हो गया 5 डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 25। तो अल्टीमेटली कितना हो गया? 2s माइनस 15 डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 25, इतना आप लिख सकते हैं। क्लियर? देयरफॉर अब शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करेंगे। e टू दी पावर माइनस, इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? कैपिटल fs हम कह सकते हैं, ये आप बगल में लिख दीजिए। देयरफॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e टू दी पावर 3t इनटू ft, ठीक है, कितना हो जाएगा? लैप्लास फर्स्ट प्रॉपर्टी से तो हो जाएगा f, जहां s है वहां पे हो जाएगा s प्लस 3, तो हो जाएगा s प्लस 3, और fs आपका इतना है तो s प्लस 3 कितना होगा? तो यहाँ आप लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ s प्लस 3 माइनस 15 डिवाइडेड बाई s प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 25। इसको आप कैलकुलेट कर लो तो अल्टीमेटली कितना हो जाएगा? तो 2s 6 तो हो जाएगा माइनस 9, ठीक है, ये हो जाएगा 2s माइनस 9, ये हो जाएगा s स्क्वायर प्लस 6s और प्लस 9 और प्लस 34। तो ये जो आपको दिख रहा है यही आपका फाइनल आंसर है इस लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का। और इसको हम लोग बनाए कैसे? विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, जैसा कि आप बोर्ड में देख सकते हैं। क्लियर? हेलो फ्रेंड्स, एक उसी तरह का सिमिलर क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। सबसे पहले एफ टी किसको मानेंगे? तो 3 साइन 2t माइनस 5 हाइपरबोलिक कोसाइन 2t, इसको मैंने क्या कर लिया? एफ टी मान लिया। तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग को पता है, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा a की जगह में 2 डिवाइडेड बाई s स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, मतलब सीधे हो जाएगा 4, फिर माइनस यहाँ हो गया 5 इंटू ये हो जाएगा s की जगह में कितना हो जाएगा? सिंपली s डिवाइडेड बाई यहाँ कितना हो जाएगा आपका? तो s स्क्वायर और माइनस 2t है तो ये हो जाएगा 4, इतना आ गया, ठीक है। चलिए अल्टीमेटली कितना लिख सकते हैं यहाँ पे? तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5s, हो जाएगा 6 माइनस 5s अपॉन ये हो जाएगा s टू दी पावर 4, ठीक है, या ऐसा भी लिख सकते हैं s स्क्वायर प्लस 4 इंटू सॉरी एलसीएम अलग हो जाएगा ना, इतना ही छोड़ दीजिए। तो हो जाएगा 6 अपॉन s स्क्वायर प्लस 4 माइनस 5s अपॉन s स्क्वायर माइनस 4, इतना आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे? इसी को आप मान लो fs, दिस इज fs, बगल में लिख दीजिए c, जरा माना। अब यहाँ पे फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा, तो देयरफॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e टू दी पावर माइनस t इंटू एफ टी, क्लियर, ये स्मॉल एफ टी है, तो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? अगर ये एफ एस है, एफ टी बराबर एफ एस है, तो e टू दी पावर माइनस टी एफ टी बराबर कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका एफ एस प्लस 1, क्लियर। अब जहां जहां भी आपका s है वहां वहां आप कितना सब्स्टिट्यूट करोगे? प्लेस करोगे s प्लस 1, तो ये हो जाएगा 6 अपॉन
एस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 5 इंटू ये हो जाएगा एस प्लस 1 अपॉन एस प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4। आप चाहो तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, हो जाएगा 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2s और प्लस 5 हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा 5s प्लस 5 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 2s माइनस 3। ठीक है, 2s माइनस 3 ये जो आपको दिख रहा है यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी मैंने क्या किया, सेम टू सेम वही पहले मैंने एफ टी निकाल लिया लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ टी का, और उसके बाद हम लोग क्या किए, जो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है उसका यहाँ यूज कर दिए। तो इस तरह से अल्टीमेटली मेरा आंसर आएगा। तो आप देख सकते हैं कि कितना इजी है और कैसे हम लोग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। कुछ और एग्जांपल्स देते हैं ताकि और आपका क्लियर हो। क्लियर? हेलो फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन जो है आपके सामने दिख रहा होगा, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। तो सॉल्यूशन लिखेंगे और लेट एफ टी इज इक्वल टू स्मॉल एफ टी इज इक्वल टू ये हो जाएगा साइन 2t इंटू कॉस टी। इसको लिख सकते हैं हाफ ऑफ 2 साइन 2t इंटू कॉस टी। ठीक है, 2 साइन इंटू कॉस बी का फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 ये हो जाएगा साइन 2f 3t प्लस साइन 2t माइनस टी। ठीक है, 2 साइन इंटू कॉस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो दोनों साइन में आ गए। तो देयरफॉर इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम निकालते हैं तो हाफ तो कांस्टेंट हो गया ना, और इसका कितना हो जाएगा, तो 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 और प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। ये हाफ दोनों में कॉमन था, और दिस इज इक्वल टू कैपिटल एफ एस। ये हम ऐसा क्या किए हैं, माने हैं, तो बगल में आप एफ एस लिख दीजिए। चलिए अब हम क्या करते हैं, देयरफॉर अब ट्रांसफॉर्मेशन फर्स्ट शिफ्टिंग में लाए, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करना है e टू दी पावर 4t इंटू एफ टी का, तो जो कि मेरा फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से बनेगा। तो हमको पता है 4 यहाँ आया है, तो हो जाएगा एफ एस माइनस 4। इसका मतलब जहाँ जहाँ भी आपका s है वहाँ पे हम s माइनस 4 लिखेंगे तो मेरा क्वेश्चन बन जाएगा। तो अल्टीमेटली 1/2 तो कांस्टेंट हो गया, ये हो जाएगा 3/s माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 9 और प्लस 1/s माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 1। इसको चाहो तो तुम सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ करली ब्रैकेट 1/3 ये हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस 8s और प्लस 16, तो 16 यहाँ हो गया और 9 यहाँ हो गया 25, तो हो जाएगा प्लस 25 इंटू प्लस का साइन ये हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस 8s और प्लस 16 प्लस 1 तो हो जाएगा 17। और ये जो आपको दिख रहा है यही आपका फाइनल आंसर है इस लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर? आप इसको ध्यान से देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। सॉरी यहाँ s है, x नहीं। ठीक है, चलिए एक सवाल और देख सकते हैं। लिखा है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पता करना है t स्क्वायर e टू दी पावर 3t। फिर वही बात है, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाइए। यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशंस, यहाँ लिखेंगे लेट एफ टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर। देयरफॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी इज इक्वल टू, आपको पता है कितना हो जाता है इसका, तो फैक्टोरियल n, तो हो जाएगा n की जगह में फैक्टोरियल 2 डिवाइडेड बाई s टू दी पावर n प्लस 1, मतलब 2 प्लस 1, क्योंकि इन प्लेस ऑफ n देयर इज अ 2, सो इट बिकम्स 2 अपॉन s का क्यूब। दिस इज इक्वल टू एफ एस, ऐसा हम कर सकते हैं, मान सकते हैं। चलिए, तो देयरफॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी स्क्वायर इंटू e टू द पावर 3t करने का मतलब जो एफ एस है वो लिखा जाएगा एफ एस माइनस 3, मतलब इन प्लेस ऑफ s यू कैन राइट s माइनस 3, सो इट बिकम्स 2 बाई
s minus 3 का होल क्यूब एंड दिस इज द फाइनल आंसर यू कैन सी. So there is nothing a typical questions. These type of problems are very simple, but you have to know this first shifting property and you must have to know the Laplace transformation of the elementary functions. अगर आप दोनों चीज जानते हैं तो आई होप कि आपको इस तरह के क्वेश्चंस बनाने में कोई दिक्कत ही नहीं होगा. आप इजी वे में देख सकते हैं कैसे क्वेश्चंस बनता है. हेलो फ्रेंड्स, उसी तरह का एक सिमिलर क्वेश्चन आप देख सकते हो. लिखा हुआ है फाइंड करना है t+2 का होल स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन. तो देखने से ही लग रहा है कि यहाँ पे जो फंक्शन है मतलब एफ टी वो ऑब्वियसली t+2 का होल स्क्वायर होगा. तो t+t का होल स्क्वायर मतलब t² + 4t + 4 हो गया और उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा. अलग अलग सेपरेट कर दीजिए, ठीक है, लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगा करके. तो 2/s का क्यूब प्लस 4/s स्क्वायर अब प्लस 4/s उसको fs मान लो और फिर शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा दीजिए. तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में करना क्या है, तो ई टू दी पावर टी से मल्टीप्लाई, मतलब जहाँ s है वहाँ एक्चुअली s-1 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. और जैसे ही s-1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो fs में जहाँ जहाँ भी s है वहाँ पर अब s-1 हो जाएगा और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी विल गेट द फाइनल रिजल्ट एंड द फाइनल रिजल्ट इज ट्वाइस ऑफ 2s² - 2s + 1 डिवाइडेड बाई s-1 का होल क्यूब, जो कि आपको दिख रहा है. क्लियर. अगला सवाल देखते हैं. हेलो फ्रेंड्स, एक बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किया गया है. देखो यहाँ पे t इंटू ई टू दी पावर 2t इंटू साइन 3t का आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है. ठीक है, तो देखिए ये क्या है आप देख सकते हैं. यहाँ पे है एफ टी. सबसे पहले एफ टी, टी को एफ टी मान लिए और टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1/s² हो गया, उसको fs मान लिया. उसके बाद क्योंकि साइन यहाँ है तो हम लोग क्या करते हैं e टू दी पावर i3t. ठीक है, हम लोग यहाँ e टू दी पावर i3t इंटू एफ टी मतलब ये हम कैलकुलेट करते हैं. तो हम एफ टी निकाल चुके हैं और e टू दी पावर जहाँ a है वहाँ 3i है, इसका मतलब s की जगह में s-3i होगा. तो जहाँ s है वहाँ लिखेंगे s-3i का होल स्क्वायर और हमने रेसलाइसन कर दिया और आफ्टर रेसलाइसन हम लोग जो है इतना मिल जाता है. यहाँ पे देखो रेसलाइसन करने के बाद ये आएगा और इधर जो e टू दी पावर 3 आयोटा 3t है मतलब e टू दी पावर i थीटा का फॉर्मूला कितना होता है cos थीटा प्लस i sin थीटा. तो ये हो जाएगा cos 3t प्लस i sin 3t इंटू टी, क्योंकि एफ टी जो है t है आपका. और यहाँ पे i वाला अलग हो जाएगा, बिना i वाला अलग, मतलब क्या बोलते हैं रियल अलग और इमेजनरी पार्ट अलग. यहाँ पे देखिए रियल अलग इमेजनरी पार्ट अलग. तो साइन 3t इंटू टी जो है इमेजनरी पार्ट है, इसलिए इक्वेटिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट. तो हमको रियल पार्ट से मतलब नहीं है, हम सिर्फ इमेजनरी पार्ट इक्वेट कर दिए. तो इमेजनरी पार्ट कितना आया, तो हो गया तुम्हारा लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t इंटू साइन 3t का जो वैल्यू आया वो हो जाएगा 6x. आयोटा यहाँ भी था, आयोटा उधर भी था, खत्म हो गया. 6x अपॉन x² + 9 का होल स्क्वायर. लेकिन मेरा जो क्वेश्चन है उसमें e टू दी पावर 2t से भी मल्टीप्लाई है. तो फाइनली क्या करेंगे यहाँ पर, यहाँ देखो तो e लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t इंटू ई टू दी पावर 2t इंटू साइन 3t. अब ये तुम्हारा फाइनली fs हो गया. अब इसमें क्या करेंगे, जहाँ जहाँ s है वहाँ पे s-2 कर देंगे क्योंकि e टू दी पावर 2t से मल्टीप्लाई है. तो जहाँ जहाँ भी s था वहाँ पे s-2 कर दिए. तो s-2 कर दिया और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी विल गेट दिस, मतलब 6x - 12 डिवाइडेड बाई s² - 4s + 13 का होल स्क्वायर. ये जो आपको दिख रहा है यही आपका क्या है फाइनल आंसर. क्लियर. तो देख सकते हैं कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये और अल्टीमेटली शिफ्टिंग का ही यूज किया गया. लेकिन यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का आया, ठीक है, यूलर फॉर्म वाला, तो वो भी आपको याद रखना है. तो ऐसे भी कहा जाता है कि जब भी आप हायर स्टडीज करते हैं तो बहुत सारी चीज़ का मिक्सअप हो जाता है. ठीक है, तो ऐसा नहीं कि अगर आप लैप्लास पढ़ रहे हैं तो आपको कॉम्प्लेक्स नहीं आना चाहिए, तो वो भी आना चाहिए क्योंकि ये सब बेसिक चीज़ है. जो बेसिक है वो आपको बेसिक के ही तरह ट्रीट करेगा और वो किसी भी चैप्टर में उस कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज कर सकते हैं, जो कि यहाँ हो रहा है. ठीक है, कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं, तब तक इसको आप देखिए एक बार. हेलो फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं क्वेश्चन है, कह रहा है शो करना, शो दैट वन नंबर है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है t sin 80 का वैल्यू इतना और t इंटू कॉस 80 का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन. और आपको बता दें ये दोनों क्वेश्चन का प्रूफ एक बार में होगा, अलग अलग नहीं करना. कहते क्या है, एफ टी इज इक्वल टू टी मान लिए तो एल एफ टी मतलब 1/s² जो कि fs हो गया, ऐसा हमने मान लिया. तो अब क्या करेंगे, क्योंकि हमको पता है जस्ट ये कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे पिछला क्वेश्चन रीड किए थे वही क्वेश्चन है, e टू दी पावर i a t से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो जैसे ही e टू दी पावर i a t से मल्टीप्लाई करेंगे t को
तो जहाँ s है, जहाँ a वहाँ i a हो गया, तो हो जाएगा एफ एस माइनस आई ए, और एफ एस माइनस आई ए का मतलब हो गया 1/s माइनस आई ए का होल स्क्वायर। और फिर यहाँ क्या करेंगे, रेसलेशन कर देते हैं, और आफ्टर रेसलेशन इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं तो हमको मिलता है ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट। उसी तरह से e टू दी पावर आई ए टी को हम लिख सकते हैं cos ए टी प्लस आई साइन टी, और फिर t से मल्टीप्लाई करके रियल पार्ट अलग इमेजिनरी पार्ट अलग, मतलब लिनियरिटी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए अलग अलग लेप्लास लिख देते हैं। तो ये रियल लेप्लास हो गया, इमेजिनरी लेप्लास हो गया, ये रियल पार्ट हो गया, ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। क्यों ना हम रियल और इमेजिनरी को इक्वेट कर लें। तो जैसे ही हम अलग करते हैं तो रियल पार्ट मतलब ट्री लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी इनटू cos 2t का वैल्यू आया s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होल स्क्वायर, जो कि यहाँ लिखा है यही पार्ट है। और जब इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करते हैं तो आ जाता है लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी इनटू sin a t, इसका वैल्यू आ जाता है 2as अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होल स्क्वायर, जो कि यहाँ देख सकते हैं। तो एक पार्ट में एक बार में दोनों क्वेश्चंस का प्रूफ हो रहा है, ठीक है। तो ये सब कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं जिसमें थोड़ा सा आपको नए तरह से क्वेश्चंस को डील करना रहता है। तो अगर मैं आपको एक बार भी ना बताऊं और आपको सीधे क्वेश्चंस दे दूं तो आपको शायद प्रॉब्लम होगा, लेकिन अगर इस तरह के क्वेश्चंस दे दिया जाए आपको तो हमको लगता है कि आप इस तरह के क्वेश्चंस को इमेजिनरी मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर के हेल्प से बना सकते हैं और इस तरह से आप थिंक कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसलिए क्वेश्चंस को बार बार डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आप इस तरह के क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आए तो उसको आप इस तरह से दिमाग में सेट कर लो कि अच्छा यहाँ पे ये इस तरह का काम करना है, मतलब यहाँ पे e टू दी पावर आयोटा वाला कॉन्सेप्ट लेके बनाना, e टू दी पावर आई टी, ठीक है। चलिए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, एक से एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है इस सेशन में आपको। हेलो फ्रेंड्स, एक और अच्छा सवाल आप देख सकते हो, एक क्वेश्चन है फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हाइपरबोलिक कोसाइन ए टी बाई स्क्वायर रूट ऑफ टी। हमको पता है कि हाइपरबोलिक कोसाइन ए टी जो उसका फॉर्मूला होता है यूलर फॉर्म में, वो होता है e टू दी पावर ए टी प्लस e टू दी पावर माइनस ए टी डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और t टू दी पावर माइनस हाफ को हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं, जिसका फॉर्मूला आया था यही ना fs है, तो दिस इज इक्वल टू ये fs कर सकते हैं से, और fs कितना आया पाई बाई एस का स्क्वायर। इसीलिए अगर हमको इतना, इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें किससे, t पे पावर माइनस हाफ से, तो ये पूरा का पूरा टर्म आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि cos h a t का जो वैल्यू है इतना हो गया, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हाफ ऑफ e टू दी पावर a t मल्टीप्लाई, हाफ तो कांस्टेंट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। e टू दी पावर a t से मल्टीप्लाई करेंगे तो जहां s है वहां s माइनस a आ जाएगा, तो यहाँ देखिए s माइनस, देखो यहाँ पे। उसी तरह e टू दी पावर माइनस a t से मल्टीप्लाई किए तो कितना हो गया, s की जगह में हो जाएगा s प्लस है। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो जैसे ही ऐड करेंगे तो ये पूरा का पूरा टर्म आ जाएगा। हमको पता है इसकी जगह लिख सकते हैं cos हाइपरबोलिक कोसाइन ए टी, और ये हो जाएगा 1/t पे पावर हाफ, जो कि इतना आया। तो दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1/2 रूट पाई, और ये हो जाएगा 1/s माइनस a का स्क्वायर रूट प्लस 1/s प्लस a का स्क्वायर रूट। ये जो आपको दिख रहा है दिस इज द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos h a t अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ t, मतलब हाइपरबोलिक कोसाइन ए टी डिवाइडेड बाय रूट t का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इतना आ गया। ये आपका फाइनल आंसर है। तो हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ एक ट्विस्ट है और एक नए तरह से हम लोग बनाते हैं, देखते हैं कैसे बना रहे हैं। तो आप भी इसको प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जस्ट लाइक प्रैक्टिस का चीज़ है, जितना प्रैक्टिस करोगे लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन उतना अच्छा हो जाएगा। छोड़ दीजिएगा सीधे जीरो पे पहुंच जाएगा। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन देखिए इसमें। हेलो फ्रेंड्स, एक आप देख सकते हो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, e टू दी पावर माइनस ए टी माइनस 2 इंटू ई टू दी पावर a बाई टी टू कॉस रूट 3 अपॉन 2 ए टी का आपको क्या करना है, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना। तो सीधा सीधी हम लोग सॉल्यूशन लिखे हैं और लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लिख दिए हैं। उसके बाद क्या किए हैं, दोनों पार्ट लिनियरिटी प्रॉपर्टी से अलग अलग कर दीजिए। तो फर्स्ट पार्ट का तो बहुत ईजी है, 1/s प्लस ए हो जाएगा माइनस 2 इंटू, सेकेंड पार्ट में देखो जो है आपका शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज हो रहा है, लेकिन उससे पहले हम लोग cos रूट 3/2 इंटू ए टी का क्या किए हैं, हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लिखे हैं। तो हमको पता है s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो a की जगह में हो जाएगा रूट 3/2 इंटू ए, तो हो जाएगा s अपॉन एस स्क्वायर प्लस रूट 3/2 इंटू ए का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या किए हैं, लेकिन क्योंकि हमको यहाँ शिफ्टिंग भी लगाना है इसलिए वहाँ लिख दिए हैं ब्रैकेट में बाहर रिप्लेस s बाई s माइनस a/2, मतलब जहाँ जहाँ s है वहाँ पर हो जाएगा s माइनस a/2।
तो जैसे ही हम लोग s के जगह में s माइनस एस बाई टू रिप्लेस किए हैं और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी विल गेट द वैल्यू कितना आया, तो हो जाएगा वो पार्ट जो है, सेकंड पार्ट जो है, फर्स्ट पार्ट रहने दीजिए 1 बाई एस प्लस ए, सेकंड पार्ट जो आप देख सकते हो गया 2s माइनस ए, 2 से मल्टीप्लाई करने पर, और नीचे जब हम वर्कआउट किए हैं तो नीचे वाला पार्ट हो गया तुम्हारा एस स्क्वायर माइनस ए एस प्लस ए स्क्वायर। और फिर जब हम क्या करेंगे, उन दोनों पार्ट का एलसीएम लिए हैं यहाँ पे आप देख सकते हो, इसमें जब हम दोनों पार्ट का एलसीएम लिए हैं तो ये और ये मल्टीप्लाई करके हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर नाम से बी प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है। और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हम लोग जो मिला है हम लोग को हो गया 2a का स्क्वायर माइनस 2as माइनस एस स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो है एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था जिसको मैंने बनाया आपके सामने, और ये भी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। और अभी इस लेक्चर वीडियो में जितने सारे भी क्वेश्चंस थे सारे के सारे क्वेश्चंस शिफ्टिंग बेस्ड थे, वो भी कौन सा शिफ्टिंग, फर्स्ट शिफ्टिंग। अब हम लोग क्या करेंगे, अगला प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं और फिर प्रॉपर्टी करके हम लोग फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। क्लियर? थैंक यू सो मच टू लिसनिंग मी केयरफुली, एंड आई होप कि ये जो टॉपिक, ये जो लेक्चर है आपको बहुत हेल्प करेगा आपका जो भी एग्जाम है उसके प्रिपरेशंस के लिए। ठीक है, वंस अगेन थैंक यू।